आप सभी की भी उपस्थिति का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अपने अग्रजों एवं आदरणीय का वंदन अभिनंदन एक गौरव का विषय है और उसी परंपरा के साथ आगे बढ़ते हुए मैं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि वो अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह से आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें, सम्मान करें। पुनः केंद्रीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी से निवेदन कि वह स्वागत उद्बोधन दें। भारत माता की नमस्कार। বিশ্বের লোকপ্রিয় নেতা আধুনিক ভারতের বিকাশ পুরুষ ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আদরণীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি পশ্চিমবঙ্গের পূর্ণভূমিতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে জানাই হার্দিক অভিনন্দন ও সুস্বাগতম। আজ হুগলি জেলার আরামবাগে অনুষ্ঠিত ভারতের এই বিকাশ মহোৎসবের মঞ্চে উপবিষ্ট ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদীজি, পশ্চিমবঙ্গের মহামহিম রাজ্যপাল ডক্টর সিভি আনন্দ বোসজি, মাননীয় পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারীজি, মাননীয় সাংসদ শ্রী সুকান্ত মজুমদারজি, মাননীয় সাংসদ শ্রী সৌমিত্র খানজি, সকল জনপ্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন আধিকারিকগণ, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, মিডিয়া বন্ধুগণ, সকল ভদ্র মহোদয় ও মাতৃমণ্ডলী, পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ বিশিষ্ট রাজ্য। প্রখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই পশ্চিমবঙ্গের গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এখানকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই যে এই উপলক্ষে তার আগামী উপস্থিতির মাধ্যমে ৭,২০০ কোটি টাকার বেশি প্রকল্প চালু করার জন্য। আগামীকাল প্রধানমন্ত্রীজি নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে থাকবেন, যেখানে তিনি উদ্বোধন করবেন, জাতিকে উৎসর্গ করবেন এবং ১৫,০০০ কোটি টাকা মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, ভারতের একটি বিশিষ্ট শহর হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটি তার নদী বন্দরের জন্য বিখ্যাত, যা শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। সরকারিভাবে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর নামে পরিচিত কলকাতা বন্দর ভারতের প্রাচীনতম এবং নেতৃস্থানীয় বন্দরগুলির মধ্যে একটি। এর সমৃদ্ধ ইতিহাস ভারতীয় বাণিজ্য ও ব্যবসার পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে জড়িত। আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রাণবন্ত চেতনার মধ্যে আমরা আমাদের সামুদ্রিক যাত্রার একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক উদযাপন করতে সমবেত হচ্ছি। কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরের ৩টি রূপান্তরমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন হচ্ছে। এই প্রকল্পগুলি সমষ্টিগতভাবে আনুমানিক ১,০০০ কোটি টাকা আমাদের অটল প্রতিশ্রুতির উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই যে মাননীয় মোদীজির গ্যারান্টি গাড়ির মাধ্যমে আজ থেকে কিছু বছর আগে PM গতিশক্তি মাস্টার প্ল্যান, পোর্ট, রোড, জলমার্গ, রেলওয়ে সেক্টরের বিকাশ হচ্ছে। এই প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পাশাপাশি আমি পশ্চিমবঙ্গের জলপথ সেক্টর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি তুলে ধরতে পেরে গর্বিত। জলমার্গ বিকাশ প্রকল্প এবং সাগরমালা কর্মসূচির মতো উদ্যোগগুলি শুধু ঐতিহ্যবাহী জলপথের রুটগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করেনি, বরং ব্যবসা, বাণিজ্য, পর্যটন এবং নতুন পথগুলিকে আগাম খুলে দিয়েছে। আমাদের রাজ্যের সংস্কৃতি ঐতিহ্যের সমৃদ্ধ টেম্পারেরি উৎপাদন করে। রুপি মূল্যের ৬২টি প্রকল্প সাগরমালা কর্মসূচি অধীনে পশ্চিমবঙ্গের ১৬,৩০০ কোটি টাকা নেওয়া হয়েছে। এমনকি কার্গো ট্রাফিক গত ৯ বছরে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালের অর্থবর্ষে এটি ১২৬ মিলিয়ন মেট্রিক টনে পৌঁছেছিল, যা ১৪ সালের অর্থবছরে শুধু ১৬ মিলিয়ন টন ছিল। আজ এই ঐতিহাসিক উৎসবে বিকশিত ভারত বিকাশ, বিকশিত বাংলার বিশেষ লোকপ্রিয় জননায়ক, জননেতা, বিকশিত পুরুষ
আদরণীয় নরেন্দ্র দামোদর মোদীজির নেতৃত্বে আমরা মোদীজি গ্যারান্টির সঙ্গে এক নতুন বাংলা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করছি এবং সকলকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার এই বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज़ादी के अमृत काल की इस पावन बेला में परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के विकास और प्रगति में उत्कृष्टता के जो नवीन पैमाने निर्मित किए जा रहे हैं, उसी कड़ी में एक और मील का पत्थर है यह समारोह। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सादर एवं सविनय निवेदन कि वह रिमोट बटन दबाकर आज की इन 9 परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और शुभारंभ करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं दिशा निर्देशन में सभी विभाग देश के सतत विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। आर्थिक विकास और नवीनीकरण के मिलन की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए आज उद्घाटित हुई परियोजनाओं के मुख्य बिंदु एक छोटे चलचित्र के माध्यम से आप सभी के अवलोकन हेतु। पश्चिम बंगाल के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सतत प्रयास किए हैं। बीते 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार द्वारा रेल, रोड, वाटरवेज, शिपिंग, पेट्रोलियम विभागों समेत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में किया गया है अभूतपूर्व निवेश और कार्य। पश्चिम बंगाल के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए और आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माण के लिए मोदी सरकार कृत संकल्प है और ये है मोदी जी की गारंटी। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज पश्चिम बंगाल को देने जा रहे हैं 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेलवे, हाईवे, वाटरवे आधुनिक हो रहे हैं, तो इससे ईज ऑफ ट्रैवल भी उतना ही बढ़ रहा है। इसका बड़ा लाभ बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज पेट्रोलियम सेक्टर की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। इनमें शामिल है खड़गपुर में बॉटलिंग प्लांट। इससे खड़गपुर के आसपास के क्षेत्रों में एलपीजी की सुगम आपूर्ति हो सकेगी। हल्दिया बरौनी क्रूड ऑयल पाइपलाइन, इससे बरौनी, बोंगाईगांव और गुवाहाटी रिफाइनरी तक कच्चे तेल की सुरक्षित और किफायती तरीके से आपूर्ति होगी सुनिश्चित। साथ ही पश्चिम बंगाल में नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत हावड़ा, बाली तथा कमरहाटी और बारानगर में इंटरसेप्शन और डाइवर्जन IND एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन होने से हुगली नदी और गंगा नदी का प्रदूषण कम होगा। साथ ही आज हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स की ऑयल जेटीज पर फायर फाइटिंग सिस्टम और तीसरी रेल माउंटेड की क्रेन RMQC का उद्घाटन होने से आग लगने जैसी दुर्घटनाओं का खतरा टाला जा सकेगा। वहीं रेल माउंटेड की क्रेन से कार्गो और कंटेनर हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अलावा कोलकाता डॉक सिस्टम की अलग अलग बर्थों में सुविधाओं को उन्नत करने और कार्गो हैंडलिंग को आधुनिक बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का किया जा रहा है शिलान्यास। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली भारतीय रेल की 3 परियोजनाओं का आज राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। इनमें शामिल है सोंडालिया चंपापुकुर रेल खंड का दोहरीकरण, डानकुनी भट्टानगर बाल्टीकुरी रेल खंड का दोहरीकरण और झारग्राम सलगा झारी रेल खंड पर नवनिर्मित तीसरी रेल लाइन। इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी होगी सुदृढ़ एवं राज्य के लोगों को मिलेगी LPG, स्वच्छ जल एवं उन्नत सीवरेज निस्तारण की सुविधा और इसके साथ ही सिद्ध होगा विकसित पश्चिम बंगाल, विकसित भारत का संकल्प। विकास की इन सुंदर झलकियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश ही नहीं वरन विश्व पटल पर भी अपने दूरदर्शी नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं एवं जिनको सुनना अपने आप में एक सौभाग्य का विषय होता है, उनसे सादर एवं सविनय निवेदन करता हूं इस पावन बेला में हम सभी को संबोधित करें। तारकेश्वर महादेव की जय। तारक बम बोल बम।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी शांतनु ठाकुर जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, सांसद अपरूपा पोद्दार जी, सुकांता मजूमदार जी, सौमित्र खान जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, 21वीं सदी का भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम सभी ने मिलकर 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया है। देश का गरीब, किसान, महिला और युवा ये देश की प्राथमिकता है। हमने निरंतर गरीब कल्याण से जुड़े कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम आज दुनिया देख रही है। बीते 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये दिखाता है कि हमारी सरकार की दिशा सही है, नीतियां सही है, निर्णय सही है और उसका मूल कारण नीयत सही है। साथियों, आज यहां पश्चिम बंगाल के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट, उसका उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इनमें रेल, पोर्ट, पेट्रोलियम और जल शक्ति से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल में रेलवे का आधुनिकीकरण उसी रफ्तार से हो जैसे देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें जाड़ग्राम सलगाजरी तीसरी लाइन से रेल परिवहन और बेहतर होगा। इससे क्षेत्र के उद्योगों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सौंडलिया, चंपापुकुर और डानकुनी भट्टनगर बाल्टीकुटी रेल रूट, इस पर दोहरीकरण भी किया गया है। इससे उस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बेहतर होगी। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और इससे जुड़ी 3 और योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस पर भी केंद्र सरकार 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। साथियों, भारत ने दुनिया को दिखाया कि पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर विकास कैसे किया जा सकता है। हल्दिया से बरौनी तक 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी क्रूड ऑयल की पाइपलाइन इसका उदाहरण है। इसके जरिए क्रूड ऑयल को 4 राज्यों बिहार, झारखंड, उड़ीसा
और पश्चिम बंगाल से होते हुए 3 अलग अलग रिफाइनरी तक पहुंचाया जाएगा। इससे खर्च भी कम होगा और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी कम होगी। आज जो पश्चिम मेदिनीपुर में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट शुरू हुआ है, उसका लाभ 7 जिलों को होगा। इससे यहां एलपीजी की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और साथ साथ नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर भी बनेंगे। आज हुगली नदी के प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी शुरू किया जा रहा है। इसका भी फायदा हावड़ा, कमरहाटी और बारानगर के क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों को होगा। साथियों, किसी भी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वहां के लोगों के लिए आगे बढ़ने के कई रास्ते तैयार हो जाते हैं। भारत सरकार ने इस साल पश्चिम बंगाल में रेलवे के विकास के लिए 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया है। 13,000 करोड़। ये राशि 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना से भी अधिक है। हमारा प्रयास है कि यहां रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन, यात्री सुविधाओं का विस्तार और रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास तेज गति से हो। पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में वर्षों से रुके पड़े कई रेलवे प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। 10 साल में बंगाल के 3,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पश्चिम बंगाल के करीब करीब 100 रेलवे स्टेशन, आप कल्पना कीजिए, एक साथ 100 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। तारकेश्वर रेलवे स्टेशन को भी अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में 150 से ज्यादा नई ट्रेन सेवाएं शुरू की गई है। 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस बंगाल के लोगों को रेल यात्रा का बिल्कुल नया अनुभव करा रही है। साथियों, मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के सहयोग से हम विकसित भारत का संकल्प भी पूरा करेंगे। एक बार फिर बंगाल के लोगों को आज की परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सरकारी कार्यक्रम अब यहां समाप्त होगा और मैं 10 मिनट के भीतर भीतर खुले मैदान में जा रहा हूं। खुले मैदान का मजा भी कुछ और होता है। बहुत सारी बातें आज मुझे कहनी है, लेकिन उस मंच पे कहूंगा। लेकिन विकास के इन सारी योजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बाहर बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं।
मैं आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार। कोटि कोटि धन्यवाद सर। आपके बहुमूल्य विचार हमारे लिए उत्प्रेरण और पथ प्रदर्शक का काम करते रहेंगे।